فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ورسول أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم یا رب العالمین۔ ان کی آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم سبھی حضرات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور کائنات فخر موجودات صاحب الاولاد نبی آخر الزمان اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، جو دانائے سبل ختم اصول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر سے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن عظیم کی چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، جس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ اردو میں یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا۔ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مومنین پر یہ احسان کیا، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے انہیں ایک رسول عطا فرمایا، ایک رسول مبعوث فرمایا۔ ایک رسول کی بعثت کی بات ہو رہی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ذرا ہم آپ کو ذرا ڈیپلی اس کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سر سے لے کر پاؤں تک اور آل لائف ہر جگہ اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، ماں باپ، دولت، صحت، تندرستی، طاقت و قوت، یہ دو آنکھیں، یہ دو پاؤں، یہ دو ہاتھ، ہماری صحت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس سے جا کر پوچھو جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلائنڈ بنا کر بھیجا، اندھا بنایا، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے
जब इंसान बेड पे पहुंचता है और बिस्तरे मरजुल मौत में मुब्तला होता है तो उसको एहसास होता है कि वो तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। ये दो हाथ जिसे हम काम करते हैं इतनी बड़ी नेमत है, उससे जाकर पूछिए जिसे अल्लाह ने दोनों हाथों से अपाहिज बना दिया है। ये दो पांव जिसे हम चल करके दुनिया की रंगीनियां उनका मुशाहिदा और मुलाहिजा करते हैं और सारा काम अपने चल कर करते हैं, इतनी बड़ी नेमत है, उससे जाकर पूछो जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों पांव से अपाहिज बना दिया है। माँ बाप इतनी बड़ी नेमत है, उससे जाकर पूछो जिसके माँ बाप का सर से उसका साया बचपन में ही छूट गया और यतीमी का दाग लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, आप उससे जाकर पूछिए। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शुरू से लेकर आखिर तक, सर से लेकर पांव तक बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया, लेकिन इतनी सारी नेमतों में कोई भी एक ऐसी नेमत नहीं है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला एहसान जता रहा है। पूरे कुरान में 30 पारे हैं और इस पर मेरा काफी डीपली स्टडी है। 6666 आयत करीमा है, 114 सूरतें हैं, 7 मंजिल है पूरे कुरान में। पूरे कुरान की एक एक आयत करीमा में जहां तक मैंने देखा, और मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी किया, अब तक इसका आंसर नहीं आया। पूरे कुरान में आपको कहीं न मिलेगा ऐ मेरे बंधु मैंने तुझे ये नेमत दी, तुम पर बड़ा एहसान। ऐ मेरे बंधु मैंने तुझे ये नेमत दी, तुम पर बड़ा एहसान किया। ऐ मेरे बंधु मैंने तुम्हें ये दी, तुम पर एहसान किया। ऐ मेरे बंधु मैंने तुम्हें वो दी, तुम पर एहसान किया। एहसान उसका है, लेकिन एहसान जताया उसने किसी नेमत पर नहीं है। पूरे कुरान पाक में अब तक हमको नहीं मिला। पूरे कुरान में रब ने किसी भी नेमत पर एहसान नहीं जताया। हाँ, एक जगह हमको ये मिला, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। कहीं ये मिला वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को खूब याद क्या करो। ये सब सारी चीजें मिली, लेकिन एहसान जताने के बाद किसी भी नेमत पर नहीं मिला, बल्कि है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। मगर एक ऐसी नेमत उज़्मा, और वो नेमत गैर मुतरक्कबा, अल्लाह ने जब वो नबी मुक़द्दस प्यारा नबी, अल्लाह ने जब अपने प्यारे पैगंबर को हमारे अंदर भेजा, तो अल्लाह की मुक़द्दस किताब साइलेंट न रह सके और ऐलान करती है कि बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर यह अजीम एहसान किया कि उसे बेहतरीन महबूब साहिब कुरान अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए कितनी बड़ी बात है। ये वो रसूल है जिसे भेज रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मेरा एहसान है, ये वो नेमत मैं तुमको दे रहा हूँ कि मेरा तुम पर ये एहसान है। और फरमाइए, वो मुक़द्दस रसूल अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता फरमाया, और अता फरमा कर फरमाया, मेरे बंदो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो ऐसी गुजरनी चाहिए जैसे मेरे नबी ने गुजार कर तुमको दिया है। तुम्हें चलना है तो इस तरह से चलना पड़े जैसे रसूलुल्लाह ने चलकर तुम्हें बताया। तुम्हें खाना भी खाना है तो इस तरह खाओ जैसे मेरे नबी ने खाया। तुम्हें पानी पीना है इस तरह से पियो जैसे रसूलुल्लाह ने पिया। शादी करनी है ऐसे करो जैसे नबी ने आयशा और खदीजा से किया। अज़दवाजी जिंदगी गुजारनी है इस तरह से गुजारो जैसे नबी ने उम्मे सलमा और आयशा के साथ गुजारी। तुम्हें दुनिया की जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक अगर गुजर गई तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तेरी आखिरत भी कामयाब। तुम्हारे लिए आइडियल जो भेज रहा हूँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है जो मैं तुमको दे रहा हूँ। गौर कीजिए, और इस उम्मत को अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई। फरमाया रब तबारक व तआला फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। हज़रात, यही दावत हमारे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी। यही दावत आप देने आए थे और आपके आने का पर्पस भी यही है कि दुनिया से तमाम गंदगी बुराइयां दूर कर दिया जाए और पूरी दुनिया में अमन और शांति बहाल हो जाए। आज भी अगर दुनिया के लोग अगर चाहते हैं कि दुनिया में हर जगह कामयाबी हो
تو ایک ہی راستہ وہ یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو پوری دنیا میں عام کر دیا جائے، نبی کی سیرت کو اگر عام کر دیا جائے اور ان کے کریکٹر کو اگر اپنا لیا جائے تو پوری دنیا میں قسم خدا کی امن اور شانتی کا ماحول ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ جو کریکٹر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کردار ہے، اب غور فرمائیے حضرات محترم، وہ عظیم نعمت اسی مہینے کی تاریخ 12ویں تاریخ کو رب تبارک و تعالی ہمیں بھیج رہا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں تاریخوں سے یہ بات ملتی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور آپ جب تشریف لائے ختنہ آپ کو نہیں کیا گیا، آپ پہلے سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ محقق عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت میں کہ حضرت آمنہ خاتون جس وقت آپ کی ولادت ہو رہی تھی اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں تھی، تو وہ گھبرائی اور گھبرانے کے بعد یہ عرض کرتی ہے، گھبرانے کے بعد یہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی ہے نہیں ہے، اور درد ذہ آپ کو شروع ہو چکا تھا۔ درد ذہ یعنی بچہ جو ہونے کے وقت جو ایک ماں کو ہوتی ہے وہ درد سے آپ کو ہو رہا تھا۔ اچانک ایک خوبصورت مہجبی سامنے نمودار ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ ایک اور عورت نمودار ہوئی، کہا تم کون ہو؟ کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ وہ صاحب ایمان تھی، مومن تھی۔ اس نے کہا میں آسیہ ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور پھر اچانک ایک بہت لمبی بہت ہائٹ والا انسان اور قد و قامت اس کے جیسے میں نے کبھی دیکھا نہیں، بہت ہی لمبا اور اس کے قد بہت بڑے اور عجیب اس کی شکل اور حسین و جمیل۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ انہوں نے یہ کہا اے آمنہ میں تمہارا باپ ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے میرے ابا کو دیکھا ہے، میرا ابا ایسا نہیں تھا۔ تو کہا اے آمنہ میں تیرے ابا کا بھی ابا، اس کا باپ ہوں، اس کے باپ کا بھی باپ۔ ارے نہیں، نسل انسانی کا باپ بابا آدم، نسل انسانی کا باپ بابا آدم ہوں۔ اے آمنہ تم کو مبارک دینے آیا ہوں، تیرے گود میں جو بچہ آ رہا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس خاندان گیتی پر لوگوں کو رہنمائی کرنے والا بچہ تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے حضرات محترم، یہ سب ساری خصوصیت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں لینے کے لیے مکہ پہنچی، عرب میں دستور تھا کہ دودھ پلانے کے لیے لوگ دایا کو رکھتے، آج بھی عرب میں بہت ساری عورتیں دودھ نہیں پلاتی اور دایا کو رکھتی ہے۔ تو دودھ پلانے کے لیے دایا جاتی تھی اور بچوں کو لاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی اور اس کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، اور جو اس کے بدلے میں معاوضہ ملتا تھا جس سے وہ اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں غریب تھی، مجبور تھی، اونٹنی بھی میری بہت لاغر و نحیف تھی۔ میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر جب گئی مکہ المکرمہ، راستے میں 5 سے 7 جگہ میری اونٹنی بیٹھ گئی اور وہ اٹھتی تھی بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ کمزور ناپاہات کی وجہ سے اس کو زیادہ جو ہے ذوق کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی، چلتی تھی بیٹھ جاتی تھی۔ کسی بھی طرح سے میں پریشانی کے ساتھ مکہ پہنچ گئی۔ جب میں پہنچی مکہ اور جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر کے میں دودھ پلانے کے لیے آئی تو میری سواری کا یہ عالم ہوا کہ جتنی بھی ساری سواری راستے میں ہم کو ملے، میری سواری کے اندر اتنی تیزی ہو گئی کہ جتنی بھی سواری ہم کو راستے میں ملی تمام سواریوں کو میری سواری نے پیچھا چھوڑ دیا اور میری اونٹنی سب سے آگے بڑھ گئی۔ میری اونٹنی تمام لوگ دوسرے کی اونٹنیوں سے آگے بڑھ گئی، میری سواری سب سے آگے بڑھ گئی، اور اس کے اندر ایک عجیب سی پھرتیلا پن اور اس کے اندر ایک عجیب سی مضبوطی پیدا ہو گئی اور وہ اسٹرونگ ہو گیا اور وہ بہت تیزی سے تمام سواریوں کو پیچھا کرتے ہوئے اور پیچھا چھوڑتے ہوئے آگے چلی گئی۔ تو جس مقام پر، مقام ابوا ایک جگہ ہے جہاں پر میری اونٹنی بیٹھی تھی،
वहां पर के लोगों ने कहा, ए हलीमा, इधर से तो तेरी ऊँटनी की हालत ठीक नहीं थी, उधर से देख रहे हो कि काफी सही उत्तर है और इसके अंदर इतनी तेजी कैसे आ गई? क्या वो वही ऊँटनी है? या है हलीमा, तूने सवारी चेंज कर लिया है क्या, या कोई दूसरी सवारी बदल लिया है, या क्या मामला है? हजरत हलीमा फरमाती है कि नहीं, सवारी चेंज नहीं किया है, बल्कि सवार बदल गया। सवारी चेंज नहीं किया, सवारी तो वही है, सवार बदल गया है। ये खूबसूरत बच्चा जो मेरे पास है, जिसे मैं लेकर चली हूँ, समझ में बात नहीं आ रही है कि जब मैं इनको लेकर चल रही हूँ तो मेरे ऊँटनी के अंदर एक अजीब सी ताकत और मेरे अंदर भी एक अजीब सी ताकत, और मुझे दुनिया एक खुशनुमा लग रही है। और जब से इस बच्चा को देखा है मैं इस पर फरिश्ता हो गई हूँ, जब से मैंने इसे देखा है मैं इस पर फिरफ्ता हो गए हूँ। अब गौर फरमाइए हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आप फरमाती कि मैं जेल लेकर गई। जब मैं लेकर गई तो मैंने दूध पिलाने वाले पीरियड में, एक रोज की बात है कि मैंने दूध पिला दिया और दूध पिला करके सुला दिया। तो जैसे आम औरतों का मामला होता है कि वो कुछ दूर पर, कुछ देर पर अपने बच्चे को देखने जाती है कि बच्चा मेरा सो रहा है, जा रहा है, जाग रहा है, किस सिचुएशन में है, तो मैं भी इसी तरह से जाती थी, आती थी। एक मर्तबा आने जाने के बीच में एक मंजर मैंने देखा जो मुझे समझ में नहीं आया। कि मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बेटे मोहम्मद की आंख मुबारक तो बंद है, वो सो रहा है, लेकिन उंगली जो है वो हरकत कर रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि बहुत देर तक मैं बैठी तो मुझे समझ में आया, मैं ये देख रही थी कि आपके अंगूठे मुबारक जैसे जैसे जमीन पर हरकत कर रही है, आसमान का चांद भी उसी ही गर्दिश करता हुआ। ये बचपने की बात है। और फिर आपने जब क्या बोलते हैं, हबीब यमनी के कहने पर चांद को जो टुकड़ा किया, ये मौजूदा तो कायनात जानती है, लेकिन ये भी है बचपन में आप अंगूठे मुबारक को हरकत जैसे जैसे कर रहे हैं, आसमान का चांद भी वैसे वैसे गर्दिश कर रहा है। आपकी उंगली अगर दाएं जानिब है तो चांद भी दाएं जानिब झुक रहा है, बाएं जानिब उंगली कर रहा है तो चांद भी बाएं जानिब, सर की तरफ उंगली तो सर की तरफ चांद भी झुक रहा है, पांव की तरफ उंगली तो पांव की तरफ झुक रहा है। हजरत मोहतरम हजरत हलीमा फरमाती है कि कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे थे जिससे मेरी हालत जो है गैर हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या मामला है। और फिर फरमाती है कि मैं कबीले साद में सबसे ज्यादा मुफलिस और गरीब थी, लेकिन मैं अपने बेटे को जब लेकर आई तो मेरी गुर्बत दूर हो गई और मेरे घर में खुशहाली आ गई। और हालत यह है कि मोहल्ले में जब किसी बच्ची की तबीयत खराब होती तो वो मेरे घर पे लाती थी और कहती थी कि अपने खूबसूरत बच्चे का हाथ मेरे बच्चे के बदन पर, और जिस बच्चे के बदन पर मेरा बेटा मोहम्मद हाथ रख देता, अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा अता फरमाता। गौर फरमाइए, ये सब ऐसे वाक़यात जो बचपने के हैं। अब गौर फरमाइए, 40 साल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। नबी 40 साल के बाद नहीं बने हैं, 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया है। अगर ऐसी बात होती तो तौरेत में आपका जिक्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील किताब नाज़िल हुई उसमें आपका जिक्र है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं अपने बाद आने वाले रसूल की बशारत देता हूँ, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पीरियड में ये बशारत दी थी जो आज भी कुरान पाक की आयत करीमा है, कुरान पाक के 28वें पारे में आयत करीमा है, वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं अपने बाद आने वाले एक रसूल की बशारत उनको सुनाता हूँ जिसका नाम अहमद होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान पर अहमद है और जमीन पर मोहम्मद है। और इसमें भी बहुत बड़ा नुक्ता मुखफ़फ़ है, अहमद, ये इसमें तफसील का सेगा है। इसका माना होता है सबसे ज्यादा हम्द करने वाला। अहमद का माना होता है सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, और मोहम्मद ये इसमें मफूल का सेगा है। इसका माना होता है जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। देखिए, अहमद सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, और मोहम्मद ये इसमें मफूल का सेगा है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो या की जाए। अब गौर फरमाइए, नबी पाक से ज्यादा तारीफ अल्लाह की, हम्द अल्लाह की कायनात में किसी ने नहीं बयान किया।
कितनी हमद रसूल पाक ने अल्लाह ताला का बयान किया। अल्लाह ने फरमाया है प्यारे नबी, हमने तेरा नाम आसमान पे अहमद रखा और जमीन के लिए मोहम्मद नाम मुस्तफा फरमा दिया। आज जमीन पर आज आप देख लीजिए कायनात में इतनी तारीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है कि अजान में नाम, नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इबादत खुदा की, सलाम नबी पर। अब गौर कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नमाज में जिक्र मुस्तफा, अजान में जिक्र मुस्तफा, हर जगह जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम है, अल्लाह के साथ साथ नबी पाक का जिक्र पाक होता चला जा रहा है। जितने सारे नबी आए उन तमाम का जब तक कि वो रहे तभी तक उनका मामला था, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कयामत तक अल्लाह ने उनके जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ दिया। ये मकाम अता फरमाया और फरमाया वरफाना लका जिक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद फरमा दिया, हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद कर दिया है। तो जब अल्लाह जिक्र बुलंद करता है तो हमें भी और भी ज्यादा हमारा हक है कि हम जिक्र को बुलंद करें। हम अगर उनका जिक्र करेंगे तो और ना करेंगे तो उनकी हैसियत, उनके वेट में कोई कमी बेशी नहीं होने वाली। हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, क्या नबी अगर आपको बनाना पर्पस ना होता, मकसद ना होता तो न मैं आसमान बनाता और ये न ज़मीन बनाता। अब बताइए, एक हदीस कुदसी, लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया, अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार नहीं फरमाता। अब गौर फरमाइए, अब मैं आपसे क्या कहा कि 40 साल के बाद नबूवत मिली नहीं बल्कि ऐलान नबूवत फरमाया। बल्कि नबी की बात तो ये है, नबी पाक फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। तर्जमा, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के मंजिल तय कर रहे। और एक दूसरी हदीस इस तरह से है, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल रूह वल जसद, कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के बीच थे। मैं उस वक्त नबी था, तो ये माजी का सेगा है, मैं नबी था। अब आप गौर फरमाइए, तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी है तो फिर बाद में नबी है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि नबूवत आपको पहले मिली और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कब दिया, कब रखा, ये रब जाने और मुस्तफा जाने, रहमत जाने। हमें तो इतना जानना है जो हमको बताया गया है और उस पर अमल करना है। और हजरत दाई हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि बकरियां चराने के लिए मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजती थी, लेकिन क्योंकि ये बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, काबा के मतवल्ली का पोता था, इसलिए मैं इनको कभी नहीं बोली कि तू भी जा बकरी चराने के लिए। मगर वाह रे, क्या किरदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या बात है, जवाब नहीं हजरात मोहतरम। नबी पाक ने खुद कहा, नबी पाक ने खुद कहा कि माँ ये मेरे रजाई भाई अब्दुल्ला बकरी चराने जाते हैं तो आप मुझे क्यों नहीं भेजती है, मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं भी तो आपका बेटा हूं ना, फिर मुझे क्यों नहीं भेजती? क्या बेटे तू हाशमी घराने का, इतने बड़े खानदान का, काबे का मतवल्ली का पोता है और तू इतना खुश, मैं तुझे कैसे भेज? क्या नहीं माँ, क्या मैं तेरा बेटा नहीं? क्या मैं तू मेरा बेटा है? तो कहा जब भाई अब्दुल्ला जाएंगे तो मैं भी बकरियां चराने जाऊंगा। अब गौर फरमाइए, जब कभी गाय पिस्ता से दूध पिला देती नबी पाक को और बार बार अगर किसी भी मर्तबा बाय पिस्तान हजरत हलीमा सादिया कभी पेश किया, एक मर्तबा भी मेरा नबी बाय पिस्तान में मुंह न लगाया, गोया उस हालत में भी आप कह रहे थे कि मैं दूसरे पाकिस्तान में मैं नहीं पी सकता, मेरे रजाई भाई का हक है और मैं किसी का हक मारने नहीं बल्कि हक देने के लिए आया हूँ। गौर फरमाइए हजरात मुहतरम, कभी भी आपने दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पिया, अपना मुंह नहीं लगाया। ये सब हजरत हलीमा सादिया का कौल है। वो फरमाती है कि जिद किया तो बकरी चराने की इजाजत दे दी। कहा ठीक है, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। कहा ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं कहूँ जाने के लिए। कहा नहीं माँ, मुझे जाने दो। कहा ठीक है जाओ। एक दो रोज गए, उसके बाद एक रोज क्या हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बकरिया को छोड़ दिया जंगल में और दौड़ते हुए आए अजीब सिचुएशन में
हाँफते हुए कांपते हुए और घर के अंदर आए और कहा माँ चलो गजब हो गया। क्या हुआ? कहा भाई मोहम्मद को किसी ने मर्डर कर दिया, भाई मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया, चलो जल्दी। अब तो इनकी हालत खराब कि मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, खाना काबा का मुतवल्ली, इतने बड़े घराने का पोता, और मैं लाई थी दूध पिलाने के लिए, देखभाल के लिए, परवरिश, और उसको किसी ने कत्ल कर दिया। ये कैसे हो सकता है? हजरत हलीमा उसी भी तरह जिस हालत में थी दौड़ने लगी जंगल की तरफ, और जब दौड़ते दौड़ते जाती है क्या देखती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आपने कहा ये तो सामने खड़ा है मेरा बेटा। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मैंने देखा है इनके सीना को किसी ने चीर दिया है, इनके सीना को किसी ने शक कर दिया है। हजरत हलीमा ने कहा बेटे तेरे साथ क्या हुआ, ये क्या चल रहा था? तो मेरे आका फरमाते हैं, नबियों का इमाम फरमाते हैं, सरवर कायनात फरमाते हैं, माँ बात दरअसल ये है कि मैं बकरियां चरा रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा कि दो आसमान से दो बुजुर्ग उतरे और दोनों बुजुर्ग में से एक दूसरे से कह रहे हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मुझको समझ में बात नहीं आई, एक ने मुझे पकड़ा और दूसरे ने मेरे सीने को चीर दिया, दूसरे ने मेरे सीने को चीर दिया और इससे कुछ निकाला, कुछ रखा, कुछ निकाला, कुछ रखा। ऐ मेरी माँ, जब से ये सिचुएशन, जब से ये मामला मेरे साथ हुआ है, तब से दुनिया की रग़बत, दुनिया की मोहब्बत मेरे अंदर से खत्म हो गई है। अब दुनिया के लगाव मेरे अंदर से खत्म हो गया। अब मुझे अपने रब की तरफ मेरा दिल लग रहा है और मेरे दिल को बड़ा चैन और सुकून मिल रहा है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ नबी क्या हमने तेरे सीना को कुशादा नहीं फरमाया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ नबी क्या हमने तेरे सीना को कुशादा नहीं कर दिया? अगर आप किसी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 10 मरतबा है और लाइफ, किसी की बारगाह में 2 मरतबा, किसी की बारगाह में 1 मरतबा है, किसी का 10 मरतबा, 20 मरतबा, जैसा जैसा सिचुएशन हुआ और जैसी जरूरत पड़ती रही, नबी की बारगाह में, अंबिया की बारगाह में हजरत जिब्रील वही इलाही लेकर आते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में हजरत जिब्रील 23 मरतबा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी, और 63 साल जिंदगी में 40 साल के बाद ऐलान नबूवत, तो नबूवत वाला पीरियड कितना हुआ? 23 ईयर्स, यानी 23 साल में, सिर्फ 23 साल में हजरत जिब्रील अमीन सीरतुल मुस्तफा की तमाम किताबों में और तमाम मसले के लोगों का भी इत्तफाक है, हजरत जिब्रील अमीन रसूल पाक की बारगाह में पूरी जिंदगी में 24,000 दफा है, 24,000 दफा पूरी जिंदगी में। और नबूवत वाला पीरियड कितना? सिर्फ 23 साल, बाकी तो 40 साल के बाद आपने जो है वो ऐलान नबूवत फरमा, तो 23 साल के अंदर। अब आप गौर कीजिए, एक मतलब ऐसा हुआ कि 25 रोज तक वही ऐलान आना बंद हो गया। रब की मर्जी है, रब की मर्जी थी, आना बंद हो गया। अच्छा, तो यहूदियों ने कहा वद्दा वकला, वद्दा वकला, देखो मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया। अब तो फरिश्ते आना उसकी बारगाह में बंद हो गया, अब तो वही आना बंद हो गया। वद्दा वकला, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को इग्नोर कर दिया है और उसको छोड़ दिया, और मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत डिप्रेशन जैसी हो गई थी, आपकी हालत अजीब हो गई थी, और आपको नींद नहीं आती थी, और आप परेशानी में पड़ गए थे, आपकी हालत अजीब हो गई थी, और दिन रात आप लगे रहते थे कि पता नहीं ये क्या मामला है, और वही इलाही का आना बंद क्यों हो गया है। 24 रोज हो गए और आपकी हालत गैर हो गई, और आप हमेशा इस ताक में लगे रहते कि ये क्या हो गया है। 25वां दिन अल्लाह ताला ने 25वां दिन हजरत जिब्रील अमीन को सूरह वद्दुहा लेकर के भेजा और कहा ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और कहना वद्दुहा, चमकते हुए दिन की कसम, सुभान अल्लाह, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की कसम जो छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला,
न तो तेरा रब तुझको छोड़ा है और न तेरा रब तुझसे कभी नाराज हुआ। सूरह वद्दुहा की वो सूरह उसी वक्त नाजिल हुई। कहा क्या है जिब्रील, जाकर के कह दो मेरे मुस्तफा से, माँ वद्दुहा का रब्बू का वो माँ कला, ना तो तेरा रब कभी तुझको इग्नोर किया और न करेगा और न तुझसे नाराज हुआ और तुझसे नाराज हुआ। आसमान जमीन बनाई तेरे सदके, शाम को सूरज को रोशनी मिली तेरे सदके, दुनिया को उजाला दिया तेरे सदके, तुझको छोड़ दूंगा, तुझसे नाराज होऊंगा। अरे वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल उला, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अफजल होगी, तुम्हारा हर आने वाला टाइम पिछले टाइम से बेहतर होने वाला है, तुम्हारा फ्यूचर पास्ट से अफजल होने वाला है, तुम्हारा नेक्स्ट टाइम पिछले टाइम से बहुत बेहतर होने वाला है। और जब एक दोस्त की नाराजगी दूर होती है तो कैसे कहते हैं कि मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया, क्या मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया, तुमको ले जाकर खाना नहीं खिलाया, तुमको अपने साथ बैठाया नहीं। एक दोस्त जब याद करते हैं और इस तरह के अल्फाज याद करते हैं, नबी पाक से अल्लाह ताला ठीक ऐसी अंदाज में फरमा रहा है, और फरमा रहा है नबी तुझसे नाराज हो जाऊंगा, मैंने तो तेरे लिए ये रखा है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हम तुमको इतना देंगे कि अनकरीब तू राजी हो जाएगा। मैं तुझसे नाराज हूंगा, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझको इतना देगा अनकरीब कि तू राजी हो जाएगा। अलम यजीद के यतीमन फआवा, क्या तुम यतीम न थे तो हमने तुमको पनाह अता फरमाई। जैसे एक दोस्त बोलते ना कि मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं तुझको कैसे भूल सकता हूँ और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसे अल्लाह फरमा रहा है नबी अलम यजीद का यतीमन फआवा, क्या तुम यतीम थे तो हमने तुमको राह नहीं दी, हमने तुमको नहीं अपनाया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और जब तुम परेशानी के आलम में थे और जब तुमको ये समझ में नहीं आ रही थी और लोग बुत परस्ती में थे और जब तुम रोशनी की तलाश में थे तो हम तुमको अपनी तरफ राह दिखलाई। ये सब सारी बातें और फरमा रहा है मेरा रब ऐसे वअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर, ये सारी बातें रब फरमा रहा है। और इसमें इस बार ये जब आयत करीमा नाज़िल हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन और इत्मीनान हुआ। अब सुनिए, अब तक के कोई भी मेडिसिन डिप्रेशन का नहीं बना है और डिप्रेशन का इलाज कहीं नहीं है। अब सुनिए, और ये बात मैं किस हवाले से बोल रहा हूँ, अल्लामा डॉक्टर असरार अहमद, जो आप यूट्यूब पर उनकी तकरीर सुन सकते हैं, मैंने ये बात उनसे सुनी थी, तो मैंने तफसीर की किताब खोली तो एक तफसीर की किताब मिली जिसमें मैंने देखा भी, उस किताब का नाम है तफसीर नईमी, और उसमें इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिर ने लिखा भी है क्या कि जिस आदमी को डिप्रेशन हो जाए सूरह वद्दुहा 40 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर पानी में दम कर 40 रोज तक पिला, उसका डिप्रेशन दूर हो जाए। और फरमाइए हज़रात मोहतरम, और अगर किसी को सीने में लंग्स का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, सीने के अंदर कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, अलम नशरा लका सदरक, अलम नशरा लका सदरक, पूरी ये सूरत पाक 40 रोज तक लगातार 40 मरतबा पढ़ करके पानी पर दम करके उसको पिलाया जाए, अल्लाह ताला उसको सीने में शिफा अता फरमाए। अब गौर फरमाए हज़रात मोहतरम, तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो किताब वो तमाम किताबों में मुमताज, तमाम किताब अल्लाह ने जो नबी तुम्हें दिया वो नबी तमाम नबियों का सरदार, जो किताब कुरान अता फरमाई वो किताब तमाम किताबों की सरदार, यौमुल जुमुअते सय्यदुल अय्याम, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार। और मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा कि ये उम्मत मोहम्मदिया तमाम उम्मतों की सरदार, ये उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार। जी अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया। ये ऐसी बात है कि हम गुंडागर्दी करके, फितना फसाद करके, आवारागिरी करके, खलफशार करके, बदकारी करके जहन्नमी बन जाए, लेकिन अल्लाह ने मकाम बहुत ऊंचा किया है, बहुत ऊंचा मकाम किया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास, अल्लाह ने तुमको जमीन पर गवाह बनाकर भेजा है, ये मकाम अता फरमाया इस उम्मत को। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप गौर कीजिए
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही आता रहा और आप सुनाते रहे। तो यहूदी कहने लगा नया दीन है, नई किताब है, नया लॉ है, ये सारी नया प्रोटोकॉल है, लेकिन किबला तो हमारा ही है ना, यानी बैतुल मुक़द्दस जिसकी तरफ यहूदी जो है उधर ही रुक करके नमाज पढ़ते थे, तो उसी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक आपने भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज अदा किया है। कितने महीने तक? 17 महीने तक आपने भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुक करके नमाज अदा किया है। तो यहूदी ये कहते थे कि नई किताब है और नई बात है, नए प्रोटोकॉल है, लेकिन किबला तो हमारा ही है ना, हमारे किबला को फॉलो करते हैं। ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुई कि यहूदी और नसारा जब ये बात कह रहे हैं, तो आपके दिल में ऐसा थिंकिंग चलने लगा। आपने रब से मांगा नहीं, आपके दिल में ये ख्यालात चलने लगे कि काश कि मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा को बना दिया जाता। बोले सुभान अल्लाह। काश कि ऐसा हो जाता। हालत नमाज ज़ोहर में, हालत इमामत में आपके दिल में ये ख्याल आया, काश कि मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा बना दिया जाता। तो रब ने फरमाया, ए नबी, तू चाहते हो अद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, हम आसमान की तरफ बार बार तुम्हारा सर उठाना देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तू जो चाहता है तेरे दिल में क्या है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, अरे घबराओ नहीं, हम उसी को किबला बना देंगे जिसमें तुम्हारी रजा है। घबराने की बात नहीं है, हम उसी को किबला बना देंगे जिसमें तेरी रजा है। तो बात की बात नहीं, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, इसी वक्त घूम जाइए हालत नमाज में ही मस्जिद हराम की तरफ, और नबी घूम गए और खाना काबा को किबला बना दिया। हालत नमाज में ही नमाज खत्म हुई, नबी घूमे तो साहबा भी, जाहिर सी बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए, आपने फरमाया, अली नमाज में इधर उधर झांकना न चाहिए, तुम पूरा मुकम्मल घूम गया। तो कहा, जवाब था नहीं। तो कहा, या रसूलल्लाह, मैंने देखा उमर को। तो कहा, उमर ये क्या हुआ, नमाज में इधर उधर झांकना न चाहिए, तुम पूरे के पूरे मूव कर गए। कहा, या रसूलल्लाह, मैं अकेले नहीं, अबू बकर, हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर बताओ वजह क्या हुई, तुम घूम गए। तो अबू बकर का जवाब सुनने, कहा, या रसूलल्लाह, मुझे क्या मालूम कि इस्लाम क्या चीज, मैं तो ये जानता हूँ कि नबी की अदाओं का नाम इस्लाम है। नबी जिधर घूम गए उधर इस्लाम है, नबी जिधर चले गए उधर ही दीन है। हमने तो आपको देकर सीखा है, हमने आपसे जाना है, हमने आपसे सब कुछ सीखा है। तो जब आप घूम गए तो फिर हमको अब क्या वजह और क्या रीजन बढ़ सकती थी। नबी पाक ने अबू बकर की कलाई तो यूं पकड़ी और मजमा में हाथ को बुलंद किया और फरमाया, या अबा बकरिन अंत साहिबी फी दुनिया वल आखिरह, ऐ अबू बकर, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब गौर फरमाइए, आज भी वो मस्जिद खाना काबा मक्का में मौजूद है, और उस मस्जिद में जहाँ नबी मूव किए थे तो वो दोनों किबला मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा दोनों तरफ। उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद क़िबलतैन, ये तस्निया कैसे गया है, मस्जिद क़िबलतैन यानी दो किबला वाली मस्जिद। वो मस्जिद आज भी जो लोग जाते हैं, वो जाने कराम, वो वहाँ बरकत के लिए नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसको देखते हैं, आज भी वो मस्जिद मौजूद है हज़रात मोहतरम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी खुशी की खातिर, आपकी मर्जी की खातिर सूरह वद्दुहा में फरमाया, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, हम आपको इतना देंगे अनकरीब आप राजी हो जाएंगे, आपसे मैं कैसे नाराज हो सकता था। और दूसरी बात फरमाया, ऐ नबी, हम उसी को किबला बना देंगे जिसमें आपकी मर्जी है। और रब तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़मत और वो आपकी हैसियत और वो उतना वेट आपको अता फरमाया। अल्लाह अकबर। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार फरमाया कि ऐ नबी, हम आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। फरमाया सारी कायनात के लिए, जो कोई नबी आते थे तो किसी खित्ता के लिए, किसी कबीला के लिए, किसी गांव के लिए, किसी एरिया के लिए, लेकिन नबी के बारे में फरमाया कि ऐ नबी, वो मारसल्ला के लिए काफ़तल लिन्नास,
ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت یہ دو ملے ہوئے انگلی کی طرح ہے۔ آپ فرماتے تھے تقاریر میں کہ میں اور قیامت یہ دونوں ملے ہوئے انگلیوں کی طرح ہے۔ کیا مطلب یہ کہ یہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک میرا ہی زمانہ ہے اور میرا ہی زمانہ ہے۔ اچھا ایک اور بات سن لیجیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ثابت کا بیٹا حسان آپ کے شان میں کچھ اشعار لکھا ہے، ثابت کا بیٹا حسان آپ کے شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، عربی لینگویج میں اشعار، کیا سنا دیا جائے؟ اگر ہاں حضرت کی اجازت ہو تو۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے شان میں تعریفی آپ کلمات لکھے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا ہے ثابت کے بیٹے ممبر پر چڑھ جا اور میرے تعریفی کلمات کو بیان کر۔ ممبر پر چڑھ جا، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ سنا۔ تو کہا کہ وہ شعر جو عربی میں انہوں نے لکھا تھا، اللہ اکبر، وَأَحْسَنَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ سمجھیں گے تو ضرور سبحان اللہ کہیں گے، میں اردو میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کی طرح حسین و جمیل آج تک حسان کی آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک آپ کے جیسا حسین و جمیل، خوبصورت، اتنا اسمارٹ، اتنا بیوٹیفل، اتنا حسین و جمیل آج تک یا رسول اللہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حسان نے مکے والوں کو دیکھا، مدینے والوں کو دیکھا، یمن والوں کو دیکھا، مصر والوں کو دیکھا ہوگا، حجاز نجد والوں کو دیکھا ہوگا، جہاں تک کہ ان کا ڈسٹینس جہاں تک جا سکتے اتنا دیکھا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو وہ نہیں جا سکے ہو وہاں کوئی ہو۔ تو حضرت حسان کی شاعری دیکھیے اور کہاں تک ان کا تخیلات کا پرواز کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا تو کسی دوسری جگہ ہو، نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری جگہ ہو۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، قیامت تک کوئی ماں ایسا بچہ جن نہیں سکتی۔ کیوں؟ ریزن کیا بتایا؟ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سر سے پاؤں تک پاک و صاف پیدا فرمایا، بے عیب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ آپ کے حسن جمال کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی زلف مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی دندان مبارک کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کی خط و خال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیوب سے پاک و صاف پیدا فرمایا۔ اور آخری مصرع آپ سنیں گے تو بڑی حیرت ہوگی، کأنک خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس کا ترجمہ آپ سنیں آپ کو ایک عجیب سا یہ محسوس ہوگا۔ یا رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی اپنی مرضی سے، یعقوب کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے، یحییٰ موسیٰ کو بنایا ہوگا اپنی مرضی سے، زکریا، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، تمام انبیاء کرام کی صورت پاک بنائی اپنی مرضی سے، لیکن میرا ایمان یہ بولتا ہے کہ کون کرے صحابی رسول حضرت حسان، یا رسول اللہ حسان کا عقیدہ یہ بولتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا تو نے چاہا تیرے رب نے تجھ کو ویسا بنا دیا، جیسا تو نے چاہا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا تو نے چاہا تیرے رب نے تجھ کو ویسا بنا دیا۔ نبی پاک نے مزمل والی چادر اتار کر انعام میں حضرت حسان کو عطا فرما، حضرت حسان کو عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، دنیا میں انسان اپنے وقت کا بڑا سے بڑا پرہیزگار آدمی ہو جائے تو دنیا اس کو مانے، مگر جب وہ اپنی وائف کے پاس آتا ہے
तो सारी चीजें वहां पर एंड हो जाती है। वो वाइफ जल्दी शौहर को मानने को तैयार नहीं होती है। वो चाहे, एक बुजुर्ग का वाकया है, उनकी बीवी, वो उन्होंने कहा अपनी बीवी से, तो लोग मुझको वली मानते, तू क्यों नहीं मानती? लोग मुझको अल्लाह का वली कहते हैं, तुम क्यों नहीं करती? कहा हम उसको अल्लाह का वली मानेंगे जो जमीन आसमान छोड़कर बीच में हवा में प्रवास करे उड़ जाए। तो कहा अच्छा, तो मान लोगी? कहा कि हाँ। कहा ठीक है बैठो। उधर गया, उधर से उड़ते हुए आंगन में उतर आए। कहा अब तो मानोगी? कहा आप ही थे। कहा नहीं, टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, नहीं मानेंगे आपको हम। यानी शौहर की वक़्त बीवी की नजर में कुछ नहीं होती है। अच्छा, एक गुलाम की नजर में आका का उठना बैठना, हर मोमेंट्स उसके सामने होता है, हर लम्हात उसके सामने होता है, इसलिए उसकी एक बात पर नजर रखता है, इसलिए उनकी पूरी हकीकत उनके सामने होती है। इसलिए जल्दी वो डर से अपने आका की गुलामी तो करता है, लेकिन उसके वक़्त को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक उसी तरह कोई अपने वक्त का इमाम वक्त हो जाए, लेकिन बड़ा आदमी तो समझता है कि अल्लामा है, फहामा है, मुफ्ती है, अदीब है, खतीब है, लेकिन बच्चे को क्या खबर? एक बच्चा तो उसकी कोई इज्जत नहीं कर सकता। देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ और जो दाद फिक्र देना चाहता हूँ वो ये, कायनात का वाहिद वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे नबी की, कि जब नबी पाक ने अपनी नबूवत का ऐलान सफा की चोटी से फरमाया तो सबसे पहले उनकी बीवी ने उनको माना, जनाब खदीजा ने उनको माना। उसके बाद गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा ने उन पर ईमान लाया है, और 10 साल का बच्चा अली इब्ने तालू ने वे ईमान ला करके उनकी गवाही दी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जा रहे हैं। और अमेरिका के राइटर ने जब 100 आदमी को जो है वो लिखा, 100 आदमी पर एक बुक लिखी, और 100 आदमी का नाम कि वर्ल्ड में 100 ऐसे आदमी है जो सबसे ज्यादा वैल्यू फेस है और वो सबसे बड़े हैं और वेटेड है, उसमें लिखा तो सबसे ऊपर जिस जात का नाम लिखा उस जात का नाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज जब गूगल पर सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बेहतर आदमी कौन है तो आपको मिलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाइए, तो हमें तो फख्र है इस बात पर कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया, कायनात में वो नबी रब ने हमें और आपको अता फरमाया जिनके चलने का कोई जवाब नहीं है, जिनका चलना मौजज़ा, जिनका बोलना मौजज़ा। और कल माशर के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रुहुल्लाह तक तमाम अंबिया कराम मौजूद होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोग कहेंगे चलो बाबा आदम के पास चलते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाएंगे। कहा आप सब अबुल बशर है, आप अबुल बशर है, आप हमारी सिफारिश कीजिए अल्लाह के बारगाह में, हम नफ्सी नफ्सी के आलम में है। आप फरमाएंगे नहीं, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे सिवा किसी दूसरे के पास चले जाओ, मैं नहीं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। लोग हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, आप तो खलील है अल्लाह के, आप तो अल्लाह के खलील है, आप शिफात फरमाइए। आप फरमाए नहीं, मैं नहीं कर सकता, आज खुद मेरी जान। इज़हबू इला गैरी, हजरत इब्राहिम यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ज़करिया इज़हबू इला गैरी, हजरत यहया इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा इज़हबू इला गैरी। एक ही जात ऐसी होगी, एक ऐसी जात होगी जो कहेंगे अना लहा, आओ मेरे पास आओ, आज मैं तेरे लिए रब की बारगाह में जरूर सिफारिश करूंगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रख देंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा इरफा रासिका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए और आप शिफात कीजिए, आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो मेरी उम्मत, या अल्लाह रब्बे हबली उम्मती, तो अल्लाह फरमाएगा इतनी उम्मत को बख्श दिया, या अल्लाह और मेरी उम्मत, इतनी उम्मत को, इतनी उम्मत को, इतनी उम्मत को। लास्ट में आएगा कि जिसके अंदर राय के बराबर भी ईमान है, मैंने उस सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाया, सबको माफ कर दिया। हज़रात मोहतरम, इसीलिए कम से कम ईमान को बचा कर जरूर चलिए। ईमान जैसी दौलत कुछ नहीं, दुनिया में ईमान से बढ़ती कोई दौलत नहीं है। ये वो आदमी कामयाब है जो इस्लाम पर रहा और ईमान पर उसका खात्मा हुआ, वो कामयाब है और उसकी जिंदगी सक्सेसफुल है। इसलिए किसी भी हाल में अपने ईमान को ज़ाय मत कीजिए, अपने ईमान को बचाकर जरूर रखिए। हज़रात मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर क़यामत तक जारी सारी फरमाए। वो नबी जो हमारे लिए शिफाअत करेंगे, वो नबी जो रब की बारगाह में हमारे लिए दुआ करेंगे। आज इस उम्मत के पास इतना टाइम ही नहीं है।
कि बैठ कर 10 मरतबा उस नबी पर दुरूद पढ़ सके। इतना टाइम ही नहीं है, इस उम्मत के पास टाइम नहीं है। ये उम्मत बहुत बिजी हो गई। इस उम्मत के पास टाइम है किसके लिए? खुराफात के लिए। इस उम्मत के पास टाइम है किस लिए? एक दूसरे को झगड़ा लगाने के लिए। इस उम्मत के पास टाइम है किस लिए? खिलवा, खशार, फितना, खून-रेज़िया और आपसी तनाज़ात पैदा करने के लिए। नबी पर दुरूद पढ़ने का टाइम ही नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं है, बहुत बिजी हो चुका है। हजरात मोहतरम, तो ये भी सुन लीजिए, नबी शफाअत फरमाएंगे ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आइडेंटिटी क्या होगी और वो शरारती कार्ड क्या होगा वो भी सुन लीजिए। उसके बाद तब तो जब खत्म कर देते हैं, जब यह आयत नाजिल हुई वाला सौफ युती का रब्बु का फतर का कि आज करीब आपका रब देगा इतना कि आप राजी हो जाएंगे, तो नबी पाक फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूँगा तब तक कि मैं अपने तमाम एक एक उम्मती की बख्शवान लूँ और एक एक उम्मती की शफाअत न करूँ। आपने ये फरमाया तो सहाबे कराम जब बैठे हुए थे मजमा में, क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रुहुल्लाह तक और फिर हजरत तक, तब वो पेश 124 इतने सारे अंबिया और इतने सारे उनकी उम्मतें, आप कैसे पहचानेंगे उसमें कि आपकी उम्मत कौन सी है? इतना जम्मे गफीर और इतना बड़ा मजमा और कायनात का पूरा आदमी वहां भरा हुआ है, और उस मजमा में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन आपकी उम्मत? आप पहचानेंगे तब ना शफाअत होगी। तो आप पहचान लेंगे कैसे कि आपकी उम्मत कौन है? तो आप फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को करोड़ों में पहचान लूंगा। कहा मेरी उम्मत की पहचान ये होगी कि उसके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे। आज़ाए वजू समझते हैं ना, वो आज़ा जो वजू में धुले जाते हैं, आप चेहरा मसाक है जो वजू में धुले जाते हैं, आपने फरमाया मेरी उम्मत की पहचान ये होगी कि उसके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे। अब आज़ाए वजू किसके चमकेंगे? जो नमाज पढ़ते वजू करते उन्हीं की ना, और जो नमाज नहीं पढ़ते, जब ये पहचान नहीं होगी तो उसकी शफाअत कैसे होगी? इसलिए पहचान बनाइए। एक काम के लिए दुनिया में आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड से पूरा जेब भर गया, फिर भी समझ में नहीं आती है, फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, क्या बात है? तो पहचान में जरा सा मिस्टेक हो रहा है। आपके पास क्या पहचान होगी कि आप उम्मत मोहम्मद आए, खैर उम्मत खैर आप है, आपके पास क्या पहचान होगी? वजू कीजिए, ये आज़ाए वजू चमकेंगे क़यामत के दिन, और जब ये चमकेंगे तो आपकी पहचान होगी, और इसी पहचान से अल्लाह के रसूल हमारी और आपकी शफाअत फरमाएंगे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। व आखिरु दावाना